Very grateful for your kind participation. So let's start with little kirtan before more devotees join. And then we'll start the discussion. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
जय राधा राधिका रमन, राधा राधिका रमन राधे। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय गौरानिताय, 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 श्री गौरानिताय। प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। तो मैं आप भक्तों का तहे दिल से आज के सत्र में स्वागत करता हूं, जिसमें जो हमने एक प्रयास शुरू किया था आज से लगभग 5 महीने पहले। एक महीने में होते हैं 4 हफ्ते। हर हफ्ते लगभग हम एक गीता का अध्याय पूरा करते थे। तो 18 अध्याय, मतलब लगभग 5 महीने पहले हमने जो एक प्रयास शुरू किया था भगवद गीता के हर अध्याय को समझने का, तो उसका समापन, उसका आखिरी चर्चा, उस सिलसिले का आखिरी चर्चा आज के सत्र में होगा। तो फिर से हमारे साथ जुड़े तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चर्चाओं से कुछ लाभ प्राप्त कर पाए होंगे और हमारे इस भगवद गीता को समझने के प्रयास में आप आगे बढ़े होंगे। इस उद्देश्य से हमने चर्चा रखी थी। तो आज के सत्र में हम गीता के 18वें अध्याय की जो बाकी शेष श्लोक रह गए हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और हमारे पास समय सिर्फ 1 घंटे का है, क्योंकि 5 बजे एक और क्लास है जिसमें मुझे भाग लेना है। तो शुरू करने से पहले जैसे मैं पूछता हूँ, तो मेरी आवाज आप सबको आ रही है? आप लिख सकते हैं। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? आप चैट बॉक्स में लिख You सकते are हैं। audible but not visible, sir. हाँ जी, सर आप ऑडिबल हैं, आप विजिबल नहीं हैं। विजिबल नहीं हूँ। जी सर। तो मेरा वीडियो ऑन है, कैमरा ऑन है, मैं अभी भी विजिबल नहीं हूँ। सर it look like blank. हाँ जी, It look like blank. Only black color is depicting. अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज मैं तो अपनी फोटो देख भी पा रहा हूँ मेरे। Babuji, we cannot see you. You're not visible. I don't know why is it so, because Maybe my you must have not given the initial permission, Prabhuji, to switch on the camera. You must have dismissed that permission. अच्छा, so should I log in again? I think so, Prabhuji. Okay, I log in again. Yes, Hare Krishna, Prabhuji. Okay, see you back after a short interval. Yes, Prabhuji. Is my smiling face visible to all of you? No, Prabhuji. Still not visible. नहीं है प्रभु जी, खाली आपका नाम है। मुझे लग रहा है कि इसके पीछे किसी की कॉन्स्पिरेसी है। But that's fatal for us, Prabhuji. We want to see your smiling face. I don't know how to get that. So, but I can see my video. I don't know why. I don't know why this is not visible. Aman Prabhu, can you help?
Is it still not visible? No, Prabhuji. नहीं प्रभु जी, नहीं। Okay, no problem. I think this time. कोई बात नहीं प्रभु जी, आप प्लीज चर्चा शुरू करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, yes, Aman Prabhu. Prabhu ji, maybe the permission for the camera is off, Prabhu ji. But I was not asked for the permission. Prabhu ji, on the मतलब when I joined, it simply asked me to join and joined. There was not like would you be on or off. So okay. अब ऑलमोस्ट खाली। Okay. So no problem. Let's continue because I have to finish by 5 and in 5 I have another class. So without wasting much time, let me continue. But more important is that I can see all of you. So that is nice. So that is nice. That is more important. तो हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले बार श्लोक संख्या 40 तक, और अब 41 से लेकर 77 तक हमें चर्चा करनी है, फ्रॉम 41 टिल 77। तो 41st वर्स से भगवान बताते हैं कि जिस तरीके से 3 गुण हमारे इंटेलिजेंस पे, डिटर्मिनेशन पे, हमारी वर्क स्टाइल पे उसका प्रभाव होता है, वैसे 3 गुणों का प्रभाव हमारे चरित्र पे भी होता है। और भगवान बताते हैं कि हम सबका जन्म हुआ है और किसी भी नव शिशु का जन्म होता है तो उसके गुणों से बता सकते हैं कि वो किस वर्ण में आ रहा है। तो भगवान बताते हैं 4 किस्म के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का मतलब साधारणता, इंटेलेक्चुअल क्लास। क्षत्रिय का मतलब साधारणता मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव या मिलिट्री क्लास। वैश्य का मतलब बिजनेस क्लास, और शूद्र का मतलब लेबर क्लास। तो कौन से वर्ण में कौन से गुण का प्रभुत्व होता है वो भगवान 41 श्लोक संख्या से बता रहे हैं। तो इशिका माता जी, आप 41st वर्स से 43rd वर्स तक पढ़ें। जी प्रभु जी। आप पढ़िए। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। हाँ, तो आप 44th वर्स तक पढ़ो। प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता, नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। हाँ, तो भगवान बताते हैं कि जो ब्राह्मण मानसिकता के हैं उनके अंदर क्या गुण होते हैं, जैसे धैर्य, तपस्या, सत्यता। जो क्षत्रिय गुण के हैं उनके अंदर शौर्य और बल। जो वैश्य के अंदर है उनके अंदर कृषि करने की योग्यता या व्यापार करने की योग्यता। और आखिरी में जो शूद्र हैं वो दूसरों की सेवा करने में उनको आनंद मिलता है। तो इस तरीके से हर कोई व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार पैदा होता है। तो या तो हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, या क्षत्रिय वर्ण के हैं, या वैश्य वर्ण के हैं, या शूद्र वर्ण के हैं। जैसे जैसे हमारा गुण हमने विकसित किए हैं वो हमारे जीवन में दिखाते हैं। लेकिन अब भगवान बता रहे हैं चाहे हम किसी वर्ण में क्यों ना हो,
ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम ऊंचे वर्ण में हैं, नीचे वर्ण में हैं, हम किसी वर्ण में क्यों ना हो, कोई भी हमारे अंदर योग्यता हो, कौशल हो, उस योग्यता और कौशल को कैसे इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को सिद्ध कर सकते हैं, ये भगवान बताएंगे। तो भगवान 45वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे हम कार्य करें कि हम कार्य करते करते अपने जीवन को सफल कर पाए, अब भगवान बताएंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, वो है 46th वर्स, और वो क्या है इशिका, पढ़वा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णतया प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन की पूर्णता कब प्राप्त कर सकता है, कि जो उसको गुण मिले हैं, जो उसको योग्यता मिली है, अगर वो उस गुण को, योग्यता को भगवान की सेवा के लिए लगाता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगाता है, भगवान की पूजा करने के लिए लगाता है, तो वो ही गुण उसके उद्धार का कारण बन जाएगा। जैसे कोई व्यापारी है तो व्यापार करे, व्यापार करने से भगवान रोकते नहीं है, लेकिन वो व्यापार करे भगवान के लिए। तो आप में से बहुत सारी गृहणियां हैं जो कि अपने घर गृहस्थी को संभालती हैं। आप सब अपने घर के कार्यों को करें, लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे आप घर की सफाई करते हैं तो ये माने कि ये वास्तविक रूप में हरि का घर है, भगवान का घर है, तो उस भावना से घर की सफाई रखें, घर का ध्यान रखें। और आप पकवान बनाते हैं तो खुद चखने से पहले या किसी और को चखाने से पहले या किसी और को मन में रखकर बनाने से पहले आप भगवान को मन के रखकर वो पकवान बनाएं। तो यही कार्य जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, अगर आप भगवान के लिए करेंगे तो वो आपके मुक्ति का द्वार, आपके जीवन की सफलता का द्वार बन जाएगा। तो ये भगवान स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जो भी हमने गुण विकसित किए, चाहे हमारे पास ब्राह्मण गुण हो, क्षत्रिय गुण हो, वैश्य गुण है, शूद्र गुण हो, जैसे हम इंटेलेक्चुअल हों, या मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे हों, या बिजनेस करने में अच्छे हों, एग्रीकल्चर करने में अच्छे हों, या फिर किसी और की मदद करने में अच्छे हों, किसी अवस्था में भी अगर हम वो भगवान की सेवा के लिए लगाएं, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको समर्पित करें, तो वही कार्य करते करते हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भगवान यही चीज गीता में बार बार बोलते हैं कि हमें कार्य को त्यागना नहीं है, कार्य किसके लिए कर रहे हैं उसको बदलना है। पहले हम कार्य अपने लिए करते थे, अपने को भोक्ता मानकर, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। लेकिन भगवान कहते हैं इसको छोड़कर अगर आप मुझे तृप्त करने के लिए कार्य करोगे तो वास्तव रूप में आप भी संतुष्ट होगे, मैं भी संतुष्ट होऊंगा, और आप इस संसार के कष्ट भरे जीवन से मुक्त हो जाओगे। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि शरीर के हर अंग को भोजन चाहिए होता है, सर को भी, पेट को भी, हाथों को भी, पैरों को भी, पीठ को भी, हर शरीर के अंग को भोजन चाहिए होता है। अगर शरीर का हर अंग भोजन खुद खाने लगे तो आपको लगता है क्या वो संभव हो पाएगा? देखिए चैट बॉक्स में, अगर हाथ सोचे कि आज हम रोटी खुद ही खाएंगे, सर सोचे कि आज दाल में खुद ही पीऊंगा, पैर सोचे कि सब्जी का मजा मैं खाऊंगा, तो आपको लगता है कि सब शरीर के अंग संतुष्ट रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। लेकिन सब अगर एक दूसरे को मदद करके वही भोजन इकट्ठा करके पेट में डाल दें तो क्या होगा? पेट को संतुष्ट करें, उदर को संतुष्ट करें, तो उदर को संतुष्ट करने से उदर का काम क्या है? वो शक्ति हर शरीर के अंग तक पहुंचा देगा। इट विल मेक ऑल लिम्स ऑफ बॉडी सेटिस्फाइड। तो हमें क्या करना है? सबको मिलकर भगवान को संतुष्ट करना है, तो भगवान उसको स्वतः ही वो संतुष्टि हम सबके हृदय में भर देंगे। जैसे एक पेड़ के हर शाखा उपशाखा को जल चाहिए, लेकिन अलग से सबको जल डालना मुश्किल है। अगर हम जड़ में डालते हैं तो जड़ क्या करता है? वो पानी सब तक पहुंचा देता है। ऐसे जब हम भगवान को संतुष्ट करते हैं तो भगवान को संतुष्ट करने से हमें भी संतुष्टि महसूस होती है, हम भी संतुष्ट महसूस होंगे और पूरा जगत संतुष्ट महसूस होगा। तो इसलिए कहा गया है यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। अगर भगवान तुष्ट हो गए तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें करना है कि जो भी हम कार्य करते हैं हम पूछे अपने वरिष्ठ भक्तों से कि कैसे उस कार्य को हम भगवान के लिए कर सके।
फिर कार्य करते करते हमें संसार से छूट जाएंगे, हमें कार्य को छोड़ना नहीं पड़ेगा। वही कार्य का सिर्फ चेतना बदलने से हम इस संसार में भी खुश रह सकते हैं, इस संसार के बाद भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। यही चीज भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में कि हमें चाहे वो कार्य में त्रुटियां हों, लेकिन कार्य को छोड़ना नहीं है, भगवान की सेवा में संलग्न करना। पढ़िए 47 to 48। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। अगला श्लोक पढ़ो। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? बार बार अर्जुन को कई श्लोक में भगवान ने कहा कि चाहे हमारे कार्य में त्रुटियां क्यों ना हो, दोष क्यों ना हो, हमें कार्य को नहीं त्यागना। क्या त्यागना है? कार्य को इसलिए नहीं करना कि मैं भोग सकूं, इस चीज को त्यागना है। कार्य को इसलिए करना है कि भगवान भोग सके। इस संसार में हर कोई व्यक्ति कार्य करता है अपने लिए। काम क्यों करता है? पैसे कमाने के लिए, अपने लिए। घर गृहस्थी क्यों चलाते हैं? अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी संतुष्टि करने के लिए। हर चीज, पढ़ाई क्यों करते हैं? अपनी डिग्री प्राप्त करने के लिए। आप देखेंगे हर चीज में हम अपने आप को भोगने के लिए कार्य करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जब आप मेरे भोग के लिए कार्य करोगे तो आपको संतुष्टि तो मिलेगी, लेकिन साथ साथ आप शुद्ध होकर इस संसार से अपने आप को छुड़वा भी पाओगे। तो ये इस चर्चा का निष्कर्ष है। फिर आने वाले श्लोकों में 54 श्लोक में तब भगवान बताते हैं कि जब कोई इस तरीके से कार्य करता है मेरी प्रसन्नता के लिए और उसके अंदर कुछ गुणों के अंदर विकसित करता है, तो वो ब्राह्मण को प्राप्त कर पाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता था इस संदर्भ में कि भगवान के 3 पहलू हैं। एक पहलू तो भगवान का दिव्य शरीर है, जिसमें भगवान की 2 भुजाएं हैं, 2 टांग हैं, भगवान का सुंदर मुख कमल है, भगवान के सुंदर बाल हैं, भगवान का दिव्य रूप है। लेकिन भगवान के उस दिव्य रूप से एक तेज निकलता है जिसको ब्रह्मन बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना है क्या, लोग कहते हैं कि हम भगवान के तेज में लीन हो जाएंगे या भगवान में लीन हो जाएंगे। सुना आपने ऐसे लोगों को कहते हुए कि जीवन का लक्ष्य क्या है कि मृत्यु के बाद भगवान में लीन हो जाना? सुना आपने ऐसा लोगों को कहते हुए? यस प्रभु जी। तो इसका मतलब क्या है कि भावना क्या है कि भगवान के जो शरीर से तेज निकलता है उसमें लीन हो जाना। तो उस तेज को बोलते हैं ब्राह्मण। दूसरा भगवान का रूप है परमात्मा के रूप में। अभी आने वाले श्लोकों में आप पढ़ेंगे कि भगवान हर जीव के साथ उसके शरीर में रहते हैं, उसको परमात्मा बोलते हैं, जिसमें वो हर जीव के साथ उस शरीर के हृदय में उनके साथ जीव के साथ रहते हैं, उसको परमात्मा बोलते हैं। और एक भगवान का दिव्य रूप है। तो भगवान के 3 अलग अलग रूप हैं। एक उनका दिव्य रूप, एक परमात्मा रूप जो कि हर जीव के हृदय में रहता है, और तीसरा उनका तेज ब्रह्मन रूप। तो भगवान इस 49 श्लोक से लेकर 54 वर्ष तक बताते हैं कैसा भगवान के तेज में लीन हो सकते हैं। लेकिन भगवान बताएंगे इससे श्रेष्ठ है परमात्मा को समर्पण करना, और उससे भी श्रेष्ठ है मेरे दिव्य रूप की सेवा में लगना। तो भगवान सीक्वेंस बताएंगे। पहले बताएंगे कैसे ब्रह्मन में लीन होना, अगर ब्रह्मन में लीन होना है तो क्या करना पड़ेगा। दूसरा भगवान बताएंगे कि परमात्मा को कैसे समर्पित करना। लेकिन तीसरा बताएंगे सर्वश्रेष्ठ है जब मेरे दिव्य रूप की आप सेवा करें। तो भगवान के 3 रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? एक ब्रह्मन, एक परमात्मा रूप और एक भगवान का दिव्य रूप। भगवान कहते हैं तीनों को प्राप्त कर सकते हैं।
इन तीनों में अगर तुलना की जाए, सर्वश्रेष्ठ है जब भगवान के हम दिव्य रूप, दो भुजा वाले रूप की सेवा करते हैं। तो 49th वर्ष से लेकर 53rd वर्ष तक भगवान बताएंगे क्या करना पड़ेगा, कैसे जीवन जीना पड़ेगा, तो भगवान हम ब्रह्मन में लीन होने के लिए योग्य बन जाएंगे। तो पढ़िए शिखा माता जी। जो आत्म 50, 51, 52, 53। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। हे कौंते पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विवेक, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। इस तो भगवान ने यहाँ पर एक सेकंड, तो भगवान ने यहाँ पर सब चीजें बताई कैसे हम ब्राह्मण को प्राप्त कर सके। तो भगवान ने पहले आत्मनियंत्रण होना पड़ेगा, अनासक्त होना पड़ेगा, भौतिक भोगों को त्यागना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा, मन को नियंत्रित करना पड़ेगा, दृढ़ रहना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें भगवान ने बताई। और अंत में जो है वो आत्म साक्षात कर पाएगा और ब्राह्मण को प्राप्त कर पाएगा। और जब वो ब्राह्मण को प्राप्त करने का योग्य बन जाएगा तो उसके अंदर क्या गुण आप देख पाएंगे, ये है 54 श्लोक संख्या। पढ़ो शिखा। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो मान कह रहे हैं कि जब कोई ब्रह्मन में लीन होने के योग्य हो जाएगा तो कैसा होगा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हमेशा प्रसन्न रहेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, कोई शोक नहीं करेगा, कोई भौतिक इच्छा नहीं रखेगा, आकांक्षा नहीं करेगा, न शोक करेगा न आकांक्षा करेगा, न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों के प्रति संभाव रहेगा, किसी से वो शत्रुता नहीं करेगा, किसी से जोर से ज्यादा प्रेम नहीं करेगा, सबको भगवान का अंश देख के समान रहेगा। मत भक्ति लभते परम, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं मेरी भक्ति मिलती है। इसका मतलब भगवान की भक्त बनना, भगवान की भक्ति प्राप्त करना ब्राह्मण को प्राप्त करने के बाद होता है। अगर हम योग लैडर से जाएं तो जब तक कोई ब्राह्मण में लीन होने के लिए तैयार होगा उसके बाद फिर वो योग्य प्राप्त करेगा भगवान की भक्ति करने का, अगर वो भगवान को प्राप्त करने का इच्छुक होगा तो। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है भगवान की भक्ति प्राप्त करने का, और वो है किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आना। जब हम किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं तो उस भक्त की कृपा से हमें भक्ति मिल जाती है। एक तो ये है कि हम योगा लैडर में पहले अपने कर्म योग करें, कर्म योग के बाद ज्ञान योग करें, और ज्ञान योग करने के बाद मुक्त होकर हम ब्राह्मण को प्राप्त करें, और फिर हम भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमें भक्तों का संपर्क हो जाए, अगर भक्तों के संग में आ जाए, तो भक्त के संग के प्रभाव से हम भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जो साधारणतः किसी को ब्राह्मण प्राप्त करने के बाद मिलती है। तो ये है भक्तों के संग का महत्व। वो हमें वो चीज दे देते हैं जो कि मुक्ति के बाद मिलने वाली है। इसलिए हमारे जीवन में भक्तों का संग की कीमत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमें भगवान को समर्पित करने वाली भक्ति प्रदान करते हैं। Therefore, their association is most crucial for us. हम भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं भक्तों के माध्यम से।
So therefore, associating with the devotee is one of the most important limbs of bhakti, because from them we get devotion to the Lord. On our own we can't get devotion. For that we will have to purify ourselves to get first liberated, then we will get bhakti. But that bhakti can be given very easily simply by serving a devotee. That is how great the Vaishnavas are, because they are giving us something invaluable, that is love unto Krishna. अब 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं, असली में भक्ति जब तक प्राप्त नहीं होगी आप मुझे नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो चाहे कोई किसी अवस्था में क्यों ना हो, जब तक उसको भक्ति नहीं मिलेगी वो भगवान को समझ नहीं पाएगा। तो भगवान को समझने का एक ही तरीका है भक्ति, और कोई साधन नहीं है। ये भगवान इसकी पुष्टि करते हैं इस श्लोक में 55 पढ़िए मंत्र। इस भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि जब तक कोई भक्ति का साधन प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कोई भक्ति में संलग्न नहीं होगा, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो अगर हमें भगवान को जानना है, अगर आप लोगों की इच्छा है कि आप कभी कृष्ण को साक्षात देख सकें, आई टू आई, वैसे तो वीडियो नहीं आ रही है, यूजुअली तो आप मुझे इस वीडियो में देख लेते हैं, तो जैसे आप मुझे देख पाते हैं या कभी आप किसी और व्यक्ति को देखते हैं इन्हीं आंखों से, उन्हीं आंखों से आप भगवान को भी देख सकते हैं, लेकिन उसका एक ही तरीका है भक्ति करके। और ये भगवान इसकी पुष्टि करते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यशस्वी तत्वतः ततो मम तत्वतः ज्ञाता विशुद्ध तदनंतरम। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। और भगवान कहते हैं जब कोई मेरी भक्ति करता है मेरे आदेश अनुसार या मेरे प्रतिनिधि गुरु के आदेश अनुसार, तो वो चाहे अगर परिपक्व नहीं भी हुआ है तब भी वो मुझे प्राप्त कर लेता है। ये है 56 वर्ष। पढ़िए शिखा। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रह कर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त although engaged in many kinds of activities, उसको बहुत सारे कार्य करते हुए भी, क्योंकि वो मेरे आदेश अनुसार या गुरु के आदेश अनुसार भक्ति करता है, तो सब कार्य करते हुए भी मेरी कृपा से मुझे प्राप्त कर लेगा। एक ज्ञानी को प्राप्त करने के लिए या एक योगी को प्राप्त करने के लिए बहुत, जैसे पहले लिखा हुआ था, उसको संन्यास लेना पड़ेगा, उसको एकांत स्थान में रहना पड़ेगा, अनासक्त होना पड़ेगा, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना पड़ेगा, सब कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, तब वो योग्य होगा ब्राह्मण को प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण को प्राप्त करने के बाद उसको भक्ति मिलेगी। लेकिन अगर किसी भक्त की कृपा से किसी को पहली भक्ति मिल जाए और उस भक्त के आदेश अनुसार वो भक्ति का पालन करता है, तो अगर वो पूरा परिपक्व नहीं भी हुआ, अगर उसमें दोष भी हैं, त्रुटियां भी हैं, तब भी मेरी कृपा से मुझे प्राप्त कर जाएगा। तो क्या आदेश है उसको करने के लिए, ये अगले श्लोक में पढ़िए शिखा। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्ण सचेत रहो। तो 3 बेसिक चीजें भगवान कह रहे हैं भक्ति के लिए। पहला कि मुझ पे हर परिस्थिति में मुझ पे निर्भर रहो, डिपेंड अपॉन मी फर्स्ट। सेकंड कि वर्क अंडर माय प्रोटेक्शन, माय डायरेक्शन, सो वी गेट टू नो कृष्णा's डायरेक्शन फ्रॉम कृष्णा's डिवोटी। तो जब हम गुरु के माध्यम से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान पे निर्भर रहते हैं और हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं, तब बड़ी आसानी से हम उनको प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान कहते हैं हम ऐसे जीवन जिएंगे कि हम भगवान पे निर्भर रहेंगे और अपने चिंतन हमेशा भगवान को रखेंगे, भगवान के भक्तों के आदेश अनुसार भक्ति करेंगे, तो संसार में जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे भी बड़ी आसानी से उसको पार कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे, हम अपने मन में भगवान को नहीं बिठाएंगे, भगवान के भक्तों के आदेश अनुसार भक्ति नहीं करेंगे, भगवान पे निर्भर नहीं रहेंगे, अपने अनुसार जीवन जिएंगे, जो हमें ठीक लगता है वो करेंगे, जैसे हम जीवन जीना चाहते हैं वैसे जिएंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे, तो भगवान कहते हैं कि आप इस संसार में निश्चित रूप से विफल हो जाओ। यही अगला श्लोक है 58। पढ़ो शिखा।
यदि तुम मुझसे भावना भवित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरा चिंतन करोगे, अगर तुम साधना करोगे, मेरे भक्तों के आदेशानुसार भक्ति करोगे, मेरे पे निर्भर रहोगे, तभी तुम इस संसार के हर उताव और चढ़ाव में तुम बड़ी आसानी से उसको पार कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने हिसाब से चीजें करोगे तो तुम विफल रह जाओगे। और ये प्रिंसिपल बता के भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अगर तुम मेरे आदेश अनुसार लड़ाई नहीं करोगे तो क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खुद ही लड़ाई करोगे। लेकिन जब तुम उस समय लड़ाई करोगे तो तुम अपनी मर्जी से लड़ाई करोगे, तब जो है तुम विफल हो जाओगे। लेकिन अब तुम लड़ाई करोगे मेरे आदेश अनुसार तो हर परिस्थिति में तुम कामयाब हो। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं तुम लड़ाई तो करोगे क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है लड़ना, लेकिन अगर तुम मेरे आदेश अनुसार लड़ोगे तो तुम कामयाब होगे, और अपने अनुसार लड़ोगे तो विफल हो जाओगे। तो यही प्रिंसिपल है कि जब हम लोग भगवान के आदेश अनुसार जीवन जीते हैं और हर रोज समय निकाल के भगवान के नामों का जप करके भगवान का चिंतन करते हैं, तो इस जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं जो कि आना अनिवार्य है, जैसे दिन निकला है तो रात होगी होगी, और रात है तो दिन भी होगा। अभी सर्दियां हैं तो निश्चित रूप से गर्मियां भी आएंगी, और जब गर्मियां आएंगी तो निश्चित रूप से सर्दियां भी आएंगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हम इस जीवन में कभी कष्ट नहीं देखेंगे, कभी परेशानी नहीं देखेंगे, कभी तो बहुत सुख मिलेगा, कभी बहुत दुख मिलेगा। ऐसे तो साइक्लिक हमेशा रहेगा। लेकिन भगवान हमें बता रहे हैं कि अगर हम भगवान पे निर्भर रहें, भगवान के भक्तों के अनुसार भक्ति करें और हर रोज भगवान का चिंतन करें, भगवान के नामों का जप करके, तो संसार के हर उतार में या चढ़ाव में हम बड़ी आसानी से उसको पार कर पाएंगे। हमें भगवान शक्ति देंगे। जैसे एक सड़क में बहुत सारे खड्डे हैं, एक व्यक्ति साइकिल में उस सड़क से गुजरता है, तो उस खड्डों में जब साइकिल गुजरती है तो उसको बड़े ठोकर खाने पड़ते हैं। और दूसरा व्यक्ति जो है मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर, जिसके अच्छे शॉक अब्जॉर्बर्स हैं, उसमें जब गाड़ी से निकलता है तो सेम रास्ते से निकलता है लेकिन उसको झटके कम लगते हैं। तो जो झटके सहने की शक्ति है, झटके सहने की जो योग्यता है, भगवान उस शॉक अब्जॉर्बर के रूप में हमें दे देता है। तो हम उसी सड़क से निकलेंगे एक साधारण व्यक्ति के समान, लेकिन में ज्यादा झटके नहीं लगेंगे। लेकिन अगर हम भगवान पे आश्रित नहीं होंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, भगवान के भक्तों के आदेश अनुसार कार्य नहीं करेंगे, तो फिर वही संसार के जो गड्ढे हैं वो हमें जोर से चोट पहुंचाएंगे। तो इसलिए हम भगवान का आश्रय लेके बड़ी आसानी से हम पार कर लेंगे। तो यही चीज भगवान अब अर्जुन को भी बताएंगे, ये प्रिंसिपल है। और अर्जुन के केस में भगवान कहेंगे कि अगर तुम मेरे अनुसार नहीं लड़ोगे तो कोई ना कोई पॉइंट आएगा कि तुम लड़ोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है लड़ना। लेकिन जब तुम उस समय लड़ोगे तो तुम इनको पराजय नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम मेरे आदेश अनुसार लड़ोगे तो बड़े से बड़े योद्धाओं को मेरी कृपा से तुम लांघ जाओगे। ये भगवान उनको 59 और 60 में बताते हैं। पढ़िए माता जी। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुर्मार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। नेक्स्ट वर्स पढ़ो। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। लेकिन हे कौंते पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बांधे होकर वही सब करोगे। तो वन कह रहे हैं तुम भ्रम होने कारण मुझे मना कर रहे हो, लेकिन देखना एक समय आएगा तुम लड़ाई जरूर करोगे, लेकिन तब तुम विफल हो रहे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हम जीवन जिए, लेकिन भगवान को अपने जीवन में केंद्र बिंदु बनाकर तो हम इस जीवन में भी खुश रह सकते हैं, हर परेशानियों का समाधान कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, आनंद में जीवन जी सकते हैं और फिर संसार से छूट के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक भगवान ने बताया था भ्रमण के बारे में। अब भगवान बताते हैं परमात्मा के रूप में कैसे हम शरीर में सिर्फ हम अकेले नहीं रहते, हमारे शरीर में हमारे साथ भगवान भी रहते हैं। और रह के क्या करते हैं भगवान ने श्लोक में बताते हैं। तो 61वां श्लोक पढ़ो, 61। हे अर्जुन,
परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, हृदय वाले स्थान में जहां तुम्हारा हृदय है वहां पर जो परमेश्वर है वो भी रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। ब्रह्मांड सर्वभूतानि, और हृदय में रहकर परमात्मा क्या करते हैं कि ब्रह्मांड सर्वभूतानि यंत्र रूपाणि माया, जो यंत्र रूपी शरीर में है भगवान जीवों को अलग अलग प्रेरणा देते हैं उनकी इच्छा अनुसार, ताकि वो कार्य करें और जो उनकी इच्छा थी वो पूरा हो सके। तो हमारे शरीर में हम भी रहते हैं और परमात्मा भी रहते हैं। तो भगवान कहते हैं फिर आप उस परमात्मा का आश्रय लो। ये है 62nd वर्ष। और भगवान कहते हैं ये बहुत गुह्यम ज्ञान है। इस संसार में कितने लोग जानते हैं या कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं कि हमारे साथ भगवान भी परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं बहुत गोपनीय है। भगवान की हर चीज बहुत गुप्त है, बहुत सीक्रेट है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। तो भगवान ने बताया ब्राह्मण को जानना कॉन्फिडेंशियल है। ब्राह्मण से ज्यादा कॉन्फिडेंशियल भगवान के परमात्मा रूप को जानना है, जो कि भगवान ने 63rd वर्ष में बताया। लेकिन भगवान बताते हैं जो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंशियल साइंस है, सबसे गोपनीय ज्ञान है, जो कि अर्जुन मैं सिर्फ तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम मुझे ईर्ष्या नहीं करते और इस संसार में कोई भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। जो सर्वगुह्यम ज्ञान है वो भगवान बताते हैं इस 64वें श्लोक में। पढ़ो इशिका। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। ये आप 62 श्लोक पढ़ रहे हो इशिका, मैं आपको कह रहा हूँ 64th वर्ष पढ़ो। 64 चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुरु जन है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। भगवान कहते हैं श्लोक में सर्वगुह्यतमं भूया श्रेणु में परमं वचा, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान कहते हैं सर्वगुह्यतमं भूया। सर्वगुह्यतमं, गुह्य मतलब सीक्रेट, गुह्यतर मतलब मोर सीक्रेट, गुह्यतमम मतलब मोस्ट सीक्रेट। सर्वगुह्यतमम मीन्स among all the secrets which is the most secret. कौन कहते हैं which is the secret of all secrets? सर्वगुह्यतमं भूया। I'm again explaining to you. Shrenu, hear that. Paramam vacha, my most essential instruction. Why I'm telling you the most confidential thing among all confidential things? Why I'm telling you the most confidential thing? Because ishtovasi me, because you're very dear to me. Dridhamiti, very very dear to me. Tato vakshami te hitam, for your benefit I'm speaking. Okay. जो भगवान ने सबसे कॉन्फिडेंशियल साइंस अर्जुन के लिए दिया था, लेकिन व्यासदेव की कितनी कृपा है कि वो ज्ञान जो भगवान ने सिर्फ अर्जुन को ठीक समझ कर दिया वो हम गीता में पढ़ पा रहे हैं। और जैसी कृपा व्यासदेव की है वैसी कृपा श्रील प्रभुपाद जी की भी है। हम कभी भी इस ज्ञान से अवगत नहीं हो पाते, कभी भी हमें मौका ही नहीं मिलता, संपर्क भी नहीं हो पाता कि संसार का सबसे महत्वपूर्ण सबसे रहस्यमय बात क्या है, जो भगवान ने सिर्फ अर्जुन को उपयुक्त व्यक्ति समझकर दिया, लेकिन वो सीक्रेट प्रभुपाद जी की कृपा से, व्यासदेव की कृपा से आज हमारे सामने खुल रहा है। और वो क्या है, वो भगवान 65वें श्लोक में कहते हैं और 67वें श्लोक में कहते हैं। और वो क्या है, यही एक मात्र श्लोक है गीता में जो कि 2 बार भगवान कहते हैं, 9वें अध्याय के आखिरी में और इस 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में। और यही पूरी गीता का एसेंस है। अगर हमने इस पूरे 5 महीनों में कुछ और ना भी समझा हो, अगर हम इस श्लोक को समझ जाएं, इसका मतलब हमारा सब चर्चा सफल हुई। और ये क्या है, भगवान कहते हैं मैं चाहूंगा कि ये श्लोक आप सब कंठस्थ करें। यही पूरी गीता का
एकमात्र शिक्षा है जो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। और भगवान खुद ही कह रहे हैं पिछले श्लोक में, सर्वगुह्यतमम भूया, कि यही सबसे ज्यादा रहस्यमय चीज है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु मम वश्यसि सत्यम ते प्रतिजानो प्रियोसि मे। तो भगवान क्या कहते हैं? मन बनाओ भाव मत भक्तो। अर्जुन, पूरी गीता का सार क्या है? सदैव अब इन शब्दों में तुम्हें आखिरी बार फिर से दोहरा रहा हूं। 9वें अध्याय में बताया था, 18वें अध्याय में बता रहा हूं। और वो क्या है? मन बना भाव मत भक्तो, कि तुम अपना मन मुझ में लगाओ, इसका अभ्यास करो, और मन भी लगाओ और मेरे भक्त भी बनो। भक्त बनने का मतलब क्या है? अपनी बाकी इंद्रियों से भी मेरा भजन करो, कानों से श्रवण करो, आंखों से मेरा दर्शन करो, नासिका से मुझे अर्पित जो फूल है उनका सुगंध सूंघो, जीवा से मुझे अर्पित जो भोग है उसको ग्रहण करो, अपने सब इंद्रियों को मुझ में लगाओ। मन मनाओ भाव मत भक्तो, मद याजी, मेरी पूजा करो, मुझे भोग अर्पित करो, मुझे दीप अर्पित करो, मुझे गंध अर्पित करो, मुझे मोरपंख अर्पित करो, मेरी पूजा करो। मद याजी माम नमस्कुरु, हर रोज आके मुझे नमस्कार करो। अगर तुम ये चीज करते हो, मम एवश्यसि सत्यम ते, मम मेरे पास, एवं निश्चित रूप से, अश्यसि मतलब तुम आ जाओगे, सत्यम ते ये मेरा वादा है। क्यों वादा है? प्रतिजने प्रियोसी में, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तो भगवान जो सबसे इस संसार की रहस्यमय चीज अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे इस 2 भुज वाले रूप को, जो कि आप इस्कॉन मंदिर में श्री राधा अधिकरमन जी के रूप में दर्शन करते हैं। अगर हम अपने मन को उन रूप में लगाएं, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाएं, भगवान के विषय में हर रोज सुने, भगवान की महिमा के बारे में सुने, हर रोज जीवा से भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, हर रोज अपने जीवा से, कर्णों से भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करें, उसका गायन करें, हाथों से भगवान के सामने आके हम प्रणाम करें, शरीर को झुकाकर नतमस्तक हो, भगवान की पूजा करें। इस तरीके से हम जीवन जिए तो हम जीवन की परिकाष्ठा को प्राप्त कर लेंगे। और भगवान कहते हैं मेरा वादा है, अगर तुम ऐसा जीवन जियोगे, माम एवश्यसि सत्यम ते, मैं तुमसे वादा करता हूं अर्जुन, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा अपने पास। तो यही पूरे गीता का सार क्या है कि हम भगवान के भक्त बने, अपने मन को भगवान में लगाएं, भगवान की पूजा करें, भगवान को याद करें, भगवान की प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा करें, भगवान से प्रेम करें। हमने संसार से ना जाने कितने लोगों से प्रेम किया है, और मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं, क्योंकि संसार का नियम है, संसार का दस्तूर है, ऐसा कोई भी संबंध नहीं है जो मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है। हर संबंध में त्रुटि निश्चित रूप से होगी। ये हो सकता है हम उसको नजरअंदाज कर दें, लेकिन ऐसा कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके, जो हमें पूर्ण रूप से समझ सके। चाहे इस संसार में सबसे शुद्ध प्रेम एक माँ और बेटा का माना जाता है, लेकिन माँ भी अपने बेटे की कितनी गलतियां टॉलरेट करती है। जब माँ चाहती है बेटा कॉल करे, वो कॉल नहीं करता है, जैसे वो ध्यान रखने के लिए चाहती है वो कर नहीं पाता है, हालांकि माँ इग्नोर कर देती है। और बेटे की तरफ से कभी कभी माँ की गलतियां उसको महसूस होती है, इग्नोर कर देती है, फिर भी वो संबंध बनता है, चाहे माँ बेटे के बीच में हो, चाहे पति पत्नी के बीच में हो। आजकल तो इतने डाइवोर्स हैं, तो ये कहना भी गलत होगा शायद कि पति पत्नी का सबसे नजदीकी का संबंध होता है, लेकिन फिर भी ऐसे कहा जाता है कि पति पत्नी का संबंध सबसे गहरा माना जाता है। लेकिन आप इस बात से सहमत करेंगे कि ऐसा कोई भी संबंध नहीं है जिसमें दूसरा व्यक्ति हमें पूर्ण रूप से समझकर हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके। ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सर्व ज्ञाता हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या हमें प्रसन्न करेगा, क्या हमें संतुष्ट करेगा, किससे हमारा संबंध पूर्ण रूप से आनंदमय होगा। तो भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सेवा में, जिनके को प्रेम करके हम असली में पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम अपने आप को शुद्ध करते हैं कि हम भगवान से सच्चा प्रेम कर सकें।
और जब हम भगवान से सच्चा प्रेम करेंगे और जब भगवान देखेंगे कि इस व्यक्ति को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं चाहिए, तो भगवान हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। जो हमें उसमें आनंद मिलेगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी। आनंद अपार, उस सीमा का जो है कोई रेखा नहीं होगी। तो पूरी गीता का यही सार है कि हम इस तरीके से जीवन को ढालें। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अपने इस तात्पर्य में कि जीवन के 24 घंटे हम कृष्ण का स्मरण कर सकें। इस तरीके से जीवन ढालें कि हम हर रोज भगवान की प्रेम में सेवा करके भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके। और अगर हम ये बात समझ गए तो हम जीवन की परिकाष्ठा प्राप्त कर लें। तो इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ो ईशिका माता जी। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे ज्ञान का उत्तम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध दूत बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 2400 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावमय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहाँ वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गौतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। बस, तो इसका मतलब क्या है कि हम ऐसे जीवन ढालें कि हम भगवान से प्रेम कर सकें। तो सिर्फ बोलने से नहीं, बहुत लोग बोलते हैं भगवान का प्रेमी भक्त हैं, बोलने से नहीं, हमें जीवन में दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए? जैसे प्रभुपाद जी कहते थे भगवान की भक्ति के लिए 4 चीज हानिकारक है, तो हम उनको त्यागे जो हमें भगवान से दूर लेके जाती हैं। जैसे मांसाहार, जैसे मदिरापान, जैसे जुआ सट्टेबाजी, और चौथा अवैध संबंध। 4 चीजों से अपने आप को निवृत्त करें। और दूसरा, हर रोज कम से कम हम इस 16 माला का जप करें और ये 4 नियमों का पालन करें। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि हमेशा मेरे मन में भगवान का चिंतन चलता नहीं। हम इस तरीके से जीवन जिए कि हम हर रोज कम से कम गुरु के आदेश, क्योंकि प्रभुपाद जी का आदेश है कि 4 किस्म के पाप है, जिसमें मांसाहार आता है, प्याज लहसुन नहीं, इसमें मदिरापान आता है, चाय कॉफी नहीं, क्योंकि हमें सब आसक्त करते हैं, जिसमें जुआ सट्टेबाजी नहीं, और कोई अवैध संबंध नहीं, पोर्नोग्राफी, इलिसिट सेक्स, ऑल दिस इलिसिट एक्टिविटीज, ये नहीं। और हर रोज हम प्रेम से भगवान की माला का जप करें। आस्ते आस्ते, अगर हम एक बार नहीं कर सकते तो आस्ते आस्ते इस स्टैंडर्ड पे आए। क्यों? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ताकि हम ये प्रसन्न करके भक्ति में आगे बढ़ सकें, हम भगवान को प्राप्त कर सकें। तो यही पूरी भक्ति का निष्कर्ष है। और भगवान कहते हैं अगर आप इसके लिए प्रयास करेंगे तो भगवान कहते हैं मैं हर परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो ये अगला श्लोक है, पढ़िए माता जी। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। और भगवान कहते हैं सब धर्म परित्यज्य, तुम इस चीज के लिए दुनिया के सारे धर्म को त्याग सकते हो, कोई भी धर्म इससे श्रेष्ठ नहीं है। ना परिवार का धर्म, ना मानव समाज का धर्म, ना हमारे रिश्तेदारों का धर्म, ना शरीर का धर्म, व्यापार का धर्म। सर्वश्रेष्ठ धर्म हमारा भगवान के साथ में है। भगवान की प्रेमी भक्ति करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। तो भगवान कहते हैं सर्व धर्म परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग कर, माम एकम, सिर्फ मेरा ही शरणम वजा, मेरी ही शरण लो, अहम तम सर्व पापेभ्यो। तो जब तुम ऐसा करोगे तो
धर्म को त्यागने में या पूर्व जन्म के पाप में कोई भी एक त्रुटि होगी, भगवान कहते हैं मोक्ष शामी, मैं सबसे मुक्त कर दूंगा। मां शुचा, डरो मत। तो मेरे शरण में आने में डरो मत, चिंता मत करो। मेरे शरण आने में तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हारा ये जीवन भी आनंद में होगा, अगला जीवन भी आनंद में होगा। तो निडर होके मेरी शरण लो, ये भगवान इस श्लोक में कहते हैं। और फिर आने वाले श्लोक में भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान है, भगवान कहते हैं हर किसी को नहीं देना चाहिए। जो तपस्वी नहीं है, जो भगवान से ईर्ष्या करता है, जो भक्त नहीं है, उसको नहीं देना चाहिए। लेकिन जो भक्तों को ये ज्ञान देता है, भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खुद भी भगवान की भक्ति करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वो भी भगवान का आश्रय ले सके। वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। और 69वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो प्रचार की सेवा करता है, खुद भक्ति करता है और दूसरों को भक्ति में जोड़ता है, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और भगवान कहते हैं कि जब कोई इस तरीके से गीता के संवाद को चर्चा करता है तो वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है। तो हमने इन 5 महीनों में जो गीता की चर्चा की, तो हमने अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा की। और भगवान कहते हैं कि इस गीता के संवाद को कोई सुनता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो पवित्र हो जाता है। इसलिए आप सब आए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भगवान ने अर्जुन से पूछा कि इतनी देर में मैंने जो भी चर्चा की तुम्हें समझ में आया या तुम्हें दोबारा समझाऊं? भगवान अर्जुन को बोलते हैं। और फिर आखिरी में 73वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादेनाच्युता स्थितोऽस्मि गतः संदेहः करिष्यं वचनं तव। भगवान कहते हैं प्रभु, अर्जुन कहते हैं भगवान को कि नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्ध्वा, मुझे स्मरण हो गया क्या करना है क्या नहीं करना। और ये कैसे हुआ है? त्व प्रसादामुच्यते, ये आपकी कृपा से हुआ है। स्थितो अस्मि, मैं अपने स्थिति में स्थित हो गया हूँ। गत संदेह, मेरे सारे संदेह खत्म हो गए। करिष्यम वचनं तव, आप जो आप कहेंगे वो मैं करूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गीता में जुड़ने से पहले आपके भी कुछ मोह रहे होंगे, संदेह रहे होंगे और कुछ परेशानियां रही होंगी, लेकिन इस गीता के संदेश से, भक्तों की मदद से आप भी इसको पार कर पाए और आपको ये स्मरण हो जाए मुझे भगवान का भक्त बनना है, भगवान की भक्ति करनी, बस फिर सब कुछ संपन्न है। फिर आखिरी के 5 श्लोक संजय बोलते हैं, 74 से लेकर 77 श्लोक तक। और संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि अद्भुत संवाद जो है मैं सुन पाया, और सुनकर क्या हुआ, अद्भुतम रोम हर्षणम, कि मेरा पूरा शरीर पुलकित हो रहा है और रोम हर्षित हो रहे हैं। और ये किसके कारण हुआ? व्यासदेव के कारण हुआ। तो उन्हीं कृपा से मैं साक्षात कृष्ण के मुख से सुन पाया। और एक ऐसा संवाद था जिसको स्मरण करके मुझे पुनः पुनः हर्षित हो रहा है और मुझे भगवान का दिव्य रूप भी दिखाई दे रहा है, जिसको देख के मैं विस्मित होते जा रहा हूँ। और फिर वो आखिरी श्लोक बोलते हैं गीता का, और क्या बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्जुन संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र को, जहां कृष्ण और अर्जुन हैं वहां पर जीत, विजय, शक्ति, लक्ष्मी जी और नीति निश्चित रूप से रहती है। तो जो पहला श्लोक था गीता का, जिसमें धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र इकट्ठे हुए हैं तो क्या हुआ, वो अंत में श्लोक के साथ खत्म कर देते हैं कि जहां कृष्ण अर्जुन है तो हे धृतराष्ट्र वहीं विजय होगी, तुम्हारे पुत्रों को विजय नहीं होगी। और इसके साथ गीता का ये संदर्भ खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ मैं आप सब भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप सब के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप सब ने अपना समय निकाला और आप सब आज यहाँ पर एकत्रित होकर गीता के संदेश को सीख पा रहे हैं। और मेरी प्रार्थना रहेगी भगवान से कि जो गीता का मर्म है, भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना, भगवान से प्रेम विकसित करना, वो आप सब उस सफर में कामयाबी प्राप्त कर सकें और इस जीवन में भी भगवान के सच्चे भक्त बने और इस जीवन के बाद भी भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके पूर्ण दिव्य आनंद में स्थिति पर रह सके। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आने वाले सत्रों में अगले हफ्ते से हमारा ये प्रयास रहेगा कि कैसे हम भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान को जाने। तो आने वाले सत्रों में हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद, जिसमें भगवान की सभी दिव्य लीला है, उसके बारे में सुनेंगे, ताकि भगवान के बारे में सुनकर, भगवान की अद्भुत लीलाओं के बारे में सुनकर, अद्भुत गुणों के बारे में सुनकर
अद्भुत कारनामों के बारे में सुनकर हम भी भगवान से आकर्षित हो सके और भगवान के सच्चे प्रेमी भक्त बन सके। ठीक है, तो 1865 इस अध्याय का श्लोक आपको याद करना है और हम मिलेंगे आपको अगले सत्र में कृष्णा बुक के साथ, श्रीमद् भागवतम के साथ। तो अगर आपके पास कृष्णा बुक नहीं है तो आज ही अपनी नजदीकी इस्कॉन मंदिर में जाइए और कृष्णा बुक हिंदी या अंग्रेजी में खरीद लाइए ताकि आप भी अगले हफ्ते हमारे साथ जुड़ सकें एक नई यात्रा में भगवान श्री कृष्ण की ओर। ठीक है। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी हम चाहते हैं कि आप ये कंटिन्यू ही रखें, हरे कृष्णा प्रभु भगवान की जी। लीलाएं बताते रहे हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप सब भक्तों का हरे कृष्णा प्रभु जी। एक प्रश्न है प्रभु जी, पूछ सकते हैं? आखिरी प्रश्न है क्योंकि 5 मिनट की मेरी क्लास है जी तो जी आपके प्रभु जी, प्रश्न के बाद मैं जी छोटा सा ही प्रश्न है प्रभु जी कि ये जैसे आपने बोला कि भक्त को ही प्रचार करना है, अभक्त को प्रचार नहीं करना है, बट आज के टाइम पे भक्त और अभक्त में आइडेंटिफाई करना ये बड़ा मुश्किल काम है। कोई इसका आंसर श्रील प्रभुपाद ने 18 चैप्टर के 71 वर्ष के टॉपर में दिया है कि हम कैसे प्रचार करते हैं जिसमें लाभ मिलता है। तो आप वो करेंगे आपको ऊपर मिल जाए और नहीं मिला अगर मुझे जी कॉल कर लीजिएगा। जी प्रभु जी। 1871 ठीक है प्रभु जी। नहीं मेरा तो ठीक है। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको मिलेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद बहुत बहुत। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मैं आगे लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।